Hello, everyone. Hi. Hello. Hello. What Hi. a Hi. Hi. Babaji, what a Hi, pleasure. Pallavi. hello Hi, sir, hello Dishant. sir, Hi, hello Dishant. ma'am. Hello, sir. Hi, Akanksha. Hi, my dear Pallavi. How are you? Good, how are you? Very well. आज खैर इतना बढ़िया हमको इंट्रोडक्शन हिमांग ऑलरेडी दे चुके हैं. I So know. I don't. It'll be very it's a tough yardstick for me to follow now. But आज कोशिश पूरी रहेगी. And I will start with our senior most panelist today. We have none other than Babla Kochar sir with us. It is quite an honor Woo! to be interacting Thank with you. him. And Thank you, sir, Dishant. it's a true honor for me to be interacting with you today because मैं इतने किस्से सुनता हूँ अपने father से. My father and Babla sir go back 30 That's a big thing, yes. मेरी Yes. Yeah. मेरे Yes. पैदा होने Yes. से पहले की इनकी दोस्ती है. एंड जी. आज भी जब मैंने उनको आज इस सेशन के बारे में बताया तो ही रिमाइंडेड मी ऑफ अ स्टोरी फ्रॉम 1985 जब आप Correct. दोनों शायद पहली बार मिले थे दिल्ली आर्ट थिएटर में. Delhi Art Theatre. Delhi Art जी, Theatre. पद्मश्री शीला भाटिया जी करता जी. धरता थी उसकी. जी. एंड आई जी. बिलीव आप सर आप एक थिएटर और एक्टिंग की दुनिया में तो आप एक नोन पर्सनालिटी थे. बट आई थिंक रेडियो की तरफ आपका फर्स्ट पढ़ाव उसी टाइम जी, हुआ उसी था. दौरान हुआ था. हाँ जी. उसी एंड दौरान हुआ था. he very और very fondly remembers that. And आज सर I feel honored. It's like life has come full circle के आज मुझे 32 सालों बाद अब मुझे मौका मिल रहा है आपके साथ इंटरेक्ट करने मैं का. एक बात कहना चाहता हूँ, जब आप पैदा हुए थे तब मैंने आपको आपके घर में आके देखा था, जब शायद आप बिल्कुल 10 दिन सर, के थे. बिल्कुल याद है मुझे. बिल्कुल सर, I आप had मेरी the मदर के लिए privilege. टी ट्री ऑयल लाए थे. ये भी मुझे बड़ी जी. फॉन्डली वो याद दिलाते हैं कि आप एक Hmm. these are the stories. I'm sorry, Correct. I'm Correct. meandering, but these are such lovely incidents, and I thought I आज मुझे know. मौका इससे बेटर मौका Shammi नहीं ji मिला. at that time was staying in Gautam Nagar, and before that he was staying in Shalimar Bagh, and I happen to know your grandparents as well. Wow, And wow. Shalimar Bagh में Shammi ji that time, sorry, going पुरानी बात हो गई. Shammi ji had just started working for All India Radio, and then I remember the day he auditioned as a news anchor in DD. हाँ जी. वो पुरानी यादें. और आपके फादर साहब की बाइक के ऊपर मैंने बहुत लिफ्ट ली है. अच्छा शमी सर बाइक चलाते थे. हाँ, this I हाँ, remember. बाइक होती थी शम्मी सर के पास में, और एक दिन वो बाइक चोरी होगी. उसका भी एक बहुत बड़ा किस्सा है, और वो कैसे ढूंढी बहुत किस्से गई. हैं. आई थिंक हम अब किस्सों में चले जाए तो ये ना ये इंडियन वॉइस लंबी फेस्ट बात की हो जगह जाएगी. इंडिया जी. जी. नॉस्टैल्जिया फेस्ट हो जाएगा. जी. जी. And जी. so now coming जी. to Pallavi, our dear Pallavi. Pallavi is a lifesaver for all of us at Pin Drop. I think I must give a shout out to Tanishka and Pankaj Sharma and Pankaj Yes, of Mohanta. course, Tanish. Yeah. हम हमारे ना बड़े डिस्ट्रेस कॉल्स जाते हैं पल्लवी को. पल्लवी प्लीज लाइफ बचा लो हमारी. आप जानती हो हमारी इंडस्ट्री कैसे ऑपरेट करती मैं है सबसे एकदम. ज्यादा फन काम भी पिन ड्रॉप के साथ ही करती हूँ. मतलब दिशांत मुझे ऐसे ऐसे काम करवाता है मुझसे that I love it. I love working with you. My apologies in advance, and I must say that you are a pillar of support for us over and above being such a mercurial powerhouse of talent. You are Oh also my such a God. wonderful and supportive professional, and I'm truly grateful for that. So thank you for everything, Pallavi and Thank Akanksha. you. आज बहुत अच्छा लगा आपके साथ interact करके. I believe in the past, Yes, sir. Tanishka has interacted with you more. I Yeah. unfortunately haven't gotten the chance of interacting with you that much, but I must say that your modulation and the characters जो किरदार आप निभाते हैं, that is truly commendable, and I think Thank you, a sir. great learning for all aspiring voice artists and people who are तो planning क्या to get बात into कर रहे हो, this जिस line. फ्रेम में मैं अभी हूँ, आई एम वेरी हैप्पी. आई रियली वांट प्लीज समवन टेक अ स्क्रीनशॉट. It's a very nice moment for me. चलिए, I hope जो इंडिया वॉइस फेस्ट वाली टीम है, they will be taking enough screenshots and enough videos. We'll have this for posterity. Great. So before we get into other stories, I think let's stick to the topic. नहीं तो Darpan and team will get angry with us. So sir, I will start with you. खैर आपका इतना illustrious, इतना एक लंबा आपका career span है, so I'm sure it will be difficult to pinpoint one particular career highlight. बट अगर मैं आपको कहूं सर कि आपके इतने लंबे करियर में वॉइस ओवर से ज्यादा जुड़ी हुई बातें करते हैं, आपके वॉइस ओवर करियर में व्हाट हैज बीन योर करियर हाईलाइट? अगर मैं सिर्फ वॉइस ओवर करियर की बात करूं
तो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब हम थिएटर कर रहे थे, शम्मी जी के साथ में, हम दिल्ली आर्ट थिएटर में थे। तब ऑल इंडिया रेडियो से वहां पे एक एनएसडी के अलुमनाई थे, मिस्टर सुशील बैनर्जी। वो थिएटर के शौकीन थे और वो ऑल इंडिया रेडियो में प्रोड्यूसर थे। उन्होंने वहां के रिहर्सल्स वगैरह देखी और उन्होंने मुझे सुना। उन्होंने कहा कि तुम्हारी आवाज रेडियो के लायक है, तुम आके ऑडिशन करो। वो पहला पॉइंट था जब मुझे रेडियो से इंट्रोडक्शन हुआ। और मैं 2 बार ऑडिशन में फेल हुआ क्योंकि तलफ्फुज गलत था, माइक को हैंडल करना नहीं आता। उसके बाद में फिर मैंने वहां से उनसे परमिशन मांगी और मैंने कहा कि मुझे आप देखने दें कि यहाँ काम कैसे होता है। आई स्पेंट 1 ईयर ट्राइंग टू लर्न हाउ टू हैंडल माइक। और वो एक टर्निंग पॉइंट था। तो अगर वो मेरी जिंदगी में वो नहीं होता तो शायद मैं आज इतनी लंबी जर्नी तय करके यहाँ पे नहीं होता या आगे की जर्नी तय करने के लायक नहीं होता। दैट वाज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 वाज इन द ईयर 1992। तब जी टीवी स्टार्ट हुआ था। उससे पहले मैं कुछ छोटे मोटे वॉइस ओवर्स करता था, लेकिन जी टीवी का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम उस वक्त लॉन्च हुआ था, आपकी अदालत। हाँ जी, और राइट। मुझे आपकी अदालत में दरबान का वॉइस ओवर करने के लिए बुलाया गया। ओके। फलाने साहब अदालत में हाजिर हो। मैं पहुंच गया। हाँ जी। मैं पहुंच गया वहां पे। अब जब मैंने वो किया और रजत जी ने मेरी आवाज सुनी, उन्होंने कहा नहीं आप ये नहीं करेंगे, आप हमारा वॉइस ओवर करेंगे। एंड आई वाज शॉक्ड। और वो एक टर्निंग पॉइंट था, आपकी अदालत में इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के लिए वॉइस ओवर करना। और वहां से वो जो जर्नी स्टार्ट हुई आज तक जारी है। आज कितने 28 साल हो गए, आई एम द वॉइस ऑफ आपकी अदालत। और गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है लॉन्गेस्ट रनिंग टेलीविजन शो इन द वर्ल्ड। और 2 चीजें उसमें कॉमन है, एक तो एंकर है रजत शर्मा जी और दूसरा मैं उसकी वॉइस हूं। Wow. Third turning point was in the year 1996. That time Delhi was just initially happening. डिस्कवरी चैनल यहाँ पे आया था और उन्होंने कुछ ऑडिशंस किए थे और वो ऑडिशन में आई पास दैट ऑडिशन। और उसके बाद में डिस्कवरी चैनल पे हमें काम मिलना शुरू हुआ और डिस्कवरी चैनल की फिर प्राइम टाइम प्रोग्रामिंग करने को मिली एंड डिस्कवरी अवॉर्डेड मी अ कपल ऑफ टाइम्स। वो एक टर्निंग पॉइंट था। देन एक और बड़ा मेजर पॉइंट था। आज से 20-22 साल पहले एक प्रोग्राम था, इंडिया का पहला क्राइम शो, इंडियाज मोस्ट वांटेड। वो करने का मुझे मौका मिला एंड आवाज से मुझे पूरे हिंदुस्तान में तब पहचाना जाने लगा। वो एक अपने आप में अलग तरह का की कैटेगरी थी वॉइस ओवर करने की और उसको काम को अप्रोच करने का एक बिल्कुल अलग तरीका था। दैट वाज अनदर टर्निंग पॉइंट एंड दैट लेड मी टू अनदर मेनी अदर थिंग्स। फिर उसके बाद में कमर्शियल्स, रेडियो कमर्शियल्स, टेलीविजन कमर्शियल्स, रेडियो ड्रामास, रेडियो सीरियल्स और इस तरह के बहुत सारे पड़ाव आए। और फिर लैंग्वेजेस, सिंस आई एम अ लिंग्विस्ट, आई वर्क इन 4 लैंग्वेजेस, Hindi, Punjabi, English, Urdu. I became the voice of ZTV, and for good 8 years, I was the voice of ZTV. Then today, I'm the voice of India TV, all the promos and commercials with PTC Network. Right. So all these are, I think, these are the high points or turning points of what I have been doing, and I've been very fortunate, and I thank the Almighty and all my seniors and all my producers and the audiences for liking my work. Wonderful, sir. Wonderful. As they say, the rest is history and your trajectory is for all to see. And जैसे आपने कहा कि कैसे आपने 1 साल पहले अपने में आपने कोई आइडेंटिफाई की खामियां, फिर आपने उसको इम्प्रूव किया, जो वो परफेक्शनिस्ट कल्चर था, मे बी दैट्स व्हाई प्रोफेशनल्स लाइक बाबला सर हैव been around for, not just been around, but have been such an integral part of the industry for 30 years almost. बिकॉज ऐसे एक परफेक्शन वाला अगर आप में एटीट्यूड हो तो तभी आपकी इतनी एक लॉन्ग टर्म जर्नी हो सकती है. सो वंडरफुल सर, सो मच टू लर्न फॉर ऑल ऑफ अस. एंड नाउ कमिंग टू पल्लवी. पल्लवी, आई विल पोज द सेम क्वेश्चन टू यू. आपके इतने वंडरफुल और इतने एक्साइटिंग करियर में, जहाँ पे मैं जानता हूँ कुछ अप्स एंड डाउन्स भी हुए हैं, हेल्थ रिलेटेड हो चाहे कुछ और हो, वी ऑल ऑब्जर्व दैट वेरी क्लोजली. कीपिंग ऑल ऑफ दैट इन माइंड, इफ यू हैड टू पिन पॉइंट वन करियर हाईलाइट, व्हाट वुड इट बी? सबसे पहले I'm honored that I'm part of India Voice Fest and Sugar Media's and Darpan Mehta. You're doing fabulous. I mean, this is a one of its kind platform, and I'm so honored and so happy because I always felt, I still feel कि voice
is a faceless voiceover, faceless artist. So we don't get that kind of recognition. So what a beautiful platform. And now coming back to the Shamsa question, uh, I started working when I was 2. So easily this 30 year experience, and I feel people are sitting in trying to understand कि अरे 30 साल मतलब क्या उम्र होगी इसकी. So but I started early, and so I've worked with some beautiful performers, and I've learned from the best. I always say this, and Babla ji, Suchitra ji, Virendra Saxena. My career highlight as such, so pata nahi, but I worked with some beautiful performers, and Irfan Khan, I've worked with him, so that's like like he's not with us anymore, but उनके साथ काम करने का मौका ही मिला मुझे, मतलब I was a little baby then, but yeah, then Nasir साहब के साथ मैंने काम किया. I played his daughter for a BBC film. Then I did Shekhar Kapoor ji के साथ I did Bandit Queen. So ये experiences बहुत बड़े, and they really helped shape my career आगे, because then I was in panels in BBC and then All India Radio, and so yeah, I think my career highlight as such. So I think it'll be as an actor TV के लिए, I think when I did Sony पे Bhavar तब, और अभी तक भी I think my कोई भी काम करती हूँ तो I feel that's a highlight because I give it my all. So yeah. Wonderful. So Pallavi is creating new highlights on a daily basis, and may that always be the case. I think हम सब And अभी तक अपने that's not an exaggeration. You've made the correct statement. And must say, कि जब ये इनको मैंने पहली बार देखा तो she was probably 4 years of age, 5 years of age, and मैंने पहला डायलॉग सुना, and I went to सुचित्रा जी, and मैंने कहा ये कमाल की चीज है, ये लड़की कमाल करेगी आने वाले वक्त. Blessed. She is blessed. wonderful. जी. Thank you. So lovely to have such senior personalities put their hand on your shoulder, and it just makes your journey ahead so much easier. And I now agree. coming to you, Akanksha, आपके जो famous वाले highlights हैं वो तो हम सब जानते हैं. You have such a big Shinchan. fan base, whether it be children or a slightly older audience. आपकी modulation, आपके एक जो किरदार निभाने की आपकी जो skill है, we're all aware of that. But let's hear it from you. आपके हिसाब से आपका career highlight क्या है? See, I would just say in front of you guys, I've just started off as a career तो भी मतलब I've just started, but obviously ये journey शुरू हुई थी 2013 में, when I was like in Radio Mirchi as a Sunday morning jock. I had won this Radio Mirchi ka contest that like 20,000 entries were there, and they like purely like वो credibility, personality and those bases, वो कहते हैं ना कि एक आप हक से जीतते हो एक contest, that kinds. So I got a chance to work with Radio Mirchi, with Saima ji, Naved sir, so I got to learn a lot. तो वहां से मुझे पता चला कि एक वॉइस इंडस्ट्री होती है, and I did a lot of ads there. So I still remember my first ad. It was for Horlicks, and it was like चिड़िया करती कुट कुट कुट, दे दो मुझको 2 बिस्कुट. And I still remember that, and I was like, and they said do the baby voice, and मेरे तो ऐसे हो गया था, चिड़िया करती कुट कुट कुट, दे दो मुझको 2 बिस्कुट. I was like, I was born with the baby voice. तो सारे बेबी वॉइस मैंने कहा मेरे को ही दे दो, मेरे को दे दो. तो बहुत खुशी से मैंने वो सब किया था, बट आई डिडंट नो कि एक प्रोफेशन बन जाता है. तो आफ्टर लाइक रेडियो मिर्ची, देन आई गॉट कि चलो ऑडिशन देते हैं वॉइस के लिए. एंड मतलब आई कैन जस्ट से कि भगवान जी की कृपा है मुझ पे, तो ही हैज टेकन केयर ऑफ मी, एंड द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू हैपन विद मी एज इन डबिंग इंडस्ट्री वाज शिनचैन्स वॉइस. एंड Right. इसके लिए भी मैं मतलब एक्चुअली पल्लवी मैम इज अ पार्ट ऑफ दिस एक्सपीरियंस, क्योंकि जब मैं पहली बार ऑडिशन देने आई थी, आई जस्ट एंटर्ड द स्टूडियो और मुझे 3-4 आवाजें सुनाई दी, हाय 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 हाय, इतनी सारी. मेरे को लगा 5 लोग एक स्टूडियो में है, ओ माय गॉड, और बाहर सिर्फ एक इंसान निकला और वो पल्लवी मैम थी. आई वाज लाइक
ये सारी वॉइसेस मैम ने ही करी, क्योंकि ऑफ कोर्स तब तक तो मेरे में हिम्मत नहीं ना कि मैम से एकदम बात करूं, कोई जो अंदर से निकल रहा है। मैं फर्स्ट टाइम ऑडिशन देने आई हूँ। आई वाज लाइक ऐसा कुछ करना है जिंदगी में, 5-6 लोगों मल्टी अवतार बनना है। एंड फिर मैंने ऑडिशन दिया एंड टचवुड शिनचैन बिकेम अ पार्ट ऑफ माय जर्नी। एंड बहुत इतना प्यार, मतलब सर आपने जैसे कि बोला कि हाईलाइट, तो यस आई थिंक टिल द टाइम आई लाइक लिव इट इज गोइंग टू बी विद मी। मेरे मम्मी पापा को शिनचैन के मम्मी पापा बोलते हैं। एंड so completely. And then I also got to be the voice of Miss Manushi Chillar. I did that iconic winning dialogue in Hindi. Like I was like so happy to do that. मैंने Mary Kom के लिए dubbing करी, and it was like really nice. And I have a YouTube like वो of course इन सब चीजों से YouTube चैनल पे मुझे बहुत लव मिला है, एंड ऑलमोस्ट 100 million व्यूज क्रॉस हुए हैं उधर, like both my YouTube channels. Wow. And That's मतलब quite वो an तो achievement. Brilliant. अरे मतलब वो तो मैं सच्ची कह रही हूँ, आई एम एक्चुअली बॉर्न इन वही कि सोशल मीडिया के युग में बस बॉर्न हो गई मैं, वरना आप लोगों के पास इतना सब कुछ है कि मैं तो कह रही हूँ कि अपने वो क्लिप्स भी मुझे दे दो, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालूं। आपसे सीखेंगे सोशल मीडिया मैनेजमेंट, आपसे सीखनी है हमें। मुझे आप लोगों से जो so सीखना, हाँ, bad. लेट्स डू दैट बाटर, या वी कैन डू Yeah, let's do the matter. वंडरफुल। चलो, मुझे दर्पण ने बोला था कि ये जो क्वेश्चंस हैं मुझे भी आंसर करने हैं, मैं इन सवालों से नहीं बच सकता। मैं चाहती थी कि आप आंसर करें। What a beautiful performer you are, Dishant. अरे नहीं You नहीं, know? how kind Pallavi, it means the world to me when it comes from someone like you. And मैं एक I'll try and keep my answer very short. As a voice artist, my highlight was when I was chosen as the global voice for United Nations Asia Pacific. मुझसे पहले ये आवाज करते थे रोशन सेठ साहब। तो उसके बाद यूनाइटेड नेशंस का स्टैंडर्ड गिर गया या मेरा स्किल बढ़ गया, दैट इज वेरी सब्जेक्टिव। बट उसके बाद सीधा माय वॉइस वाज चोजन फॉर द एंटायर एशिया पैसिफिक रीजन फॉर यूनाइटेड नेशंस एंड देन नोडल एजेंसीज सच एज यूनिसेफ, WHO, WFP, UNDP, so that was wonderful. And as a voice producer, because I have to don 2 hats, so as a voice producer, my great benchmark for us was when we officially crossed the 1,000 mark, when we impaneled our 1,000th artist in our official pin drop empanelment. And वो इसलिए बड़ा मजा आया उस टाइम पे क्योंकि इसी बहाने ऑफिस में एक शैंपेन पॉप हो गई और थोड़े जंक फूड खा लिया, तो इसलिए वो मोमेंट मेरे लिए बड़ा स्पेशल हो गया. So those were my highlights in a nutshell. And wonderful stories. We've everyone's got such unique and such personal journeys and trajectories. तो बहुत मजा आया सबके answers सुन के. Now coming to the second question, which is very relevant in today's day and age. Yeah, I think I would like to start off with Akanksha for this particular question. And the question is, Akanksha, कि आज के युग में सोशल मीडिया प्रेजेंस और सोशल मीडिया वैलिडेशन कितनी जरूरी है एक वॉइस आर्टिस्ट के लिए? Sorry, I think we've lost Akanksha. Akanksha, can you hear us? Akanksha is speaking, but we can't hear Akanksha. Akanksha, आपका शायद माइक ना लूज हो गया हो, आप एक बार कनेक्शन चेक कर लीजिए. No problem. I'll take this question to Pallavi. Once Akanksha's connection restores, we'll come back to her. Pallavi, why don't you answer this for me? How important is social media presence and validation in today's day and age? So I think Akanksha, are you back? Okay. No. No, Okay. but audibly. We can't hear Akanksha. आप एक बार कोई नहीं. आ गई. Social media question and then net is becoming very rowdy. So sorry. हाँ जी, आपने मेरा सवाल सुन लिया आकांक्षा? Yes sir. ठीक है, प्लीज आप. फ्रैंकली स्पीकिंग वही होता है ना कि जब एक मोमोज खाने का ट्रेंड शुरू होता है तो एवरीवन इज हैविंग मोमोज, तो मतलब दैट काइंड होता है कि मतलब एवरीवन इज हैविंग दैट, या तो यही चाहिए आज की ऑडियंस को, यही मतलब रेलेवेंट, वेरी रेलेवेंट. मे बी शायद अभी देखते देखते बहुत सारे लोग मोमोज खा भी रहे होंगे. तो इट्स लाइक see, I feel कि I was very blessed कि मैं उसी time I started working, like when I started working within 2-3 years the social media actually expanded. It's very important, I would say. Yes,
it is important, because by this, I'm not saying, of course, you can reach out to the audience. The audience will actually know what all goes behind the voice. But it's very important also to diversify ना, कि आप सिर्फ दिल्ली के आर्टिस्ट नहीं हो फिर अब. Now Hmm. your voice Correct. profile is going worldwide. एंड जैसे कि आई गेस मतलब सर को, मैम को, जैसे कि like through, of course, word of mouth, definitely they have got, because of their amazing work, aapka amazing work, and but isse it just, you get more validation, and the audience gets to know you, and social media mein aap apna work dal rahe ho, it's like, you're telling what you're doing, and it's very important to embrace what you're doing. So it's like, I'm sure कि हम इतना जाते नहीं है डिटेल में टू, मतलब कितने सारे कैरेक्टर्स करे हैं, बट उनका क्लिपिंग्स निकाल के डालना इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. जी बट जी इवन शेयरिंग इट विद द वर्ल्ड, और वो नॉलेज बढ़ती है, एंड दैट विल एक्चुअली इन टर्न हेल्प द इंडस्ट्री ग्रो. लाइक दिस इज अ वे, दिस इज Hmm. अ सोशल मीडिया Absolutely. प्लेटफॉर्म, इंडिया वॉइस फेस्ट इज एक्चुअली इंटरैक्टिंग with the audience. This is what today's Momo's age wants. Momo age. That's a Yeah, Momo Momo age. age. Yeah. That's the Wonderful. quickest point that. Wonderful. I could have not hoped for a more insightful and entertaining answer than that. So thank you very much. And Pallavi, what is your take on it? Dishant, my social media skill is slightly sort of it's just picking up now, but I'm still learning. But I feel so. I read someplace or I saw it someplace that initially this relationship between an actor and his audience, it was very sort of aspirational, but now it's become very on the relatability criteria it's come down to. So now, Right. like, I think the more you can relate to your TG, I think the more you'll sell. And you're also the boss of your own narrative. So I think you are picking things that you want to sort of, put out there for people's consumption. So I think, and also there's this the feedback, that's instant feedback is something that I'm like really enjoying it. So if you put something out there and then there's a dislike thing or people are liking it, so you know what's working, right? So I think like Akanksha rightly said, thoda आपका expansion भी हो रहा है, and your TV or radio के अलावा social media is another platform where your art is selling. So I think that validation is important, boss. Now, अभी आज की age में ये Gen Z or millennials और इन सब की age में तो it is very important, and I think one should keep changing with time. So I think it's important, and yeah, it sort of increases and uplifts your brand value a little. Wonderful. Wonderful. And Babla sir, this would probably, amongst all the panelists here today, the social media world or the digital revolution was probably, a big paradigm shift for you. तो आप इससे आप कैसे अडेप्ट कर रहे हैं? आप आई नो, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को भी सोशल मीडिया सिखाते सिखाते मैं खुद कभी कभार भूल जाता हूँ. बट आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, बिकॉज आई नो कि आप फिर भी थोड़े एक्टिव हैं, तो आपकी क्या इस पे टेक है? मेरी टेक वो है, super active on social media. He is more social media savvy than me for sure. I know that for a fact. मुझे शम्मी जी की एक बात याद आती है. आई रिमेम्बर शम्मी जी इज वन लाइनर ऑन सोशल मीडिया. He wrote, Instagram sounds to me like MoneyGram. हाँ जी. Instagram और किलोग्राम में फर्क नहीं मालूम. किलोग्राम में उनको कोई फर्क नजर नहीं आता. But you need to grow out of it actually. वक्त के साथ बदलना पड़ेगा. I think I am coming from, I started my career in the analog age. जब एक मशीन के ऊपर सब कुछ होता था. आई रिमेम्बर स्कूल के टाइम पे स्कूल के ऊपर काम होता था, स्कूल के काम होता था. आपकी पर्सनल स्किल्स बहुत मैटर करती थी. आप एक रेडियो कमर्शियल करते हुए कहाँ पे आप अगर अटक गए हैं तो आपको वही टोन पकड़ के आना है और उसी टोन से आपको उसको जोड़ना है. वो आपका स्किल सेट आपको डेवलप करना होता था एज अ परफॉर्मर. पर ये उसके बाद में जब ये फैसिलिटीज आनी शुरू हुई, जब ये प्रो टूल्स, इस तरह के
सॉफ्टवेयर आए जिससे कि आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। Right. फिर एक स्टेज वो होती थी कि हमारी मार्केट बड़ी लिमिटेड होती थी, यू नो, बहुत छोटी सी एक दिल्ली शहर की मार्केट है जिसमें आप काम कर रहे हैं, गिनती के लोगों के साथ में काम कर रहे हैं, आपको दिल्ली के बाहर कोई जानता नहीं है। हाँ, जयपुर से एक क्लाइंट आपको कभी फोन करता था और वो एक हफ्ता पहले टाइम लेता था, वो स्पेशली आता था, आगे काम करा के लेके जाता था। जी, या जी, फिर वो स्टेज भी आई जब के पंजाब के कुछ क्लाइंट्स होते थे जिनका के एक आदमी वहां से चलता था, एजेंसी से यहाँ पे आता था, वो सारे 10-20 क्लाइंट्स के अपना काम करा के हमसे ले जाता था। वो स्टेज के बाद में द बिगेस्ट पैराडाइम शिफ्ट इज द इंटरनेट। और इंटरनेट पे जब से हमारे पास ये फैसिलिटी आई है कि हम अपना काम ऑडियो अटैचमेंट बना के भेज सकते हैं और फिर बड़ी अटैचमेंट अलग अलग एप्स के थ्रू भेज सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट था, उससे काम बढ़ गया। और right. I mean, people all over the country started knowing, oh, this guy is the same voice. ये आवाज सुनी थी, अच्छा आपने ये काम किया। फिर जब से ये सोशल मीडिया आया, फेसबुक आया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आई थिंक ये हम सब प्रोफेशनल्स के लिए इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ ब्लेसिंग। Right. Right. व्हाई? बिकॉज आपने जो काम, आई रिमेम्बर मेरे कुछ ऑडिबल के लिए किए हुए काम है, जैसे एक काम है सेपियंस। Yes. आई वॉज जी। अमेज्ड टू नो कि मैं तो करके उस काम को भूल गया, किसी ने उसकी डुप्लीकेसी करके यूट्यूब पे उसको डाल दिया एंड इट गॉट मोर देन 50 लाख व्यूज। My God. Wow. आप ये सोचिए उसकी पावर क्या है उसकी। Good for the book, I- bad for Amazon. या बैड फॉर Amazon, बट देन ऑब्वियसली Amazon वालों ने उसके ऊपर केस कर दिया, कुछ भी किया हुआ, दे हैव देयर लीगल राइट्स, बट यू सी हमारी जो रीच है और जो आज की डेट में एक्सेप्टेबिलिटी है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, वो बढ़ गई है। आज आप एक अच्छा काम करें या बुरा काम करें, आप सोशल मीडिया पे उसका एक क्लिप डालते हैं, आपको फौरन एक रिएक्शन जरूर मिलता है। आपके हर किसी के कुछ फॉलोअर्स हैं, घटते बढ़ते रहते हैं फॉलोअर्स, बट दैट रिएक्शन यू नो टेल्स यू अ लॉट about how your audiences are taking you. You need to improve upon in this particular section of your craft, or you need to improve upon in this particular section of marketing your craft. So I think social media has, you know, like I did one television series, and that series has been dubbed all over the globe, and people follow me from places like West Indies. Wow. People follow me from Wow. South Africa, and when they get to know that I do the voice for this particular program, I am the voice of Mahatma Gandhi in my experiments with truth. You see, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है, आपके काम का दायरा बढ़ जाता है, और एक आर्टिस्ट को यही तो सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है कि दैट पीपल नो यू बिकॉज ऑफ योर वर्क। आप और ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। इसलिए पल्लवी इज राइट, मैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ में सोशल मीडिया को अप्रोच करता हूँ। जब मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो लाइक आई ऑल्सो हैव 2 sons, एंड मैं उनको पकड़ लेता हूँ, भाई बताओ मेरे को करना क्या है, इसको ठीक कैसे करना है, वो अच्छा, मेरी ये मदद नहीं कर बोल रहे। रहे, ये नहीं बता रहे कि मैं पल्लवी को भी फोन करता हूँ। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक है। मैं अभी ये सब अभी ये बोल दिया। सेशन स्टार्ट होने से पहले मैंने पल्लवी को भी फोन किया था। मगर पल्लवी, मैं आई डोंट वांट टू गूफ अप व्हाइल वी डू दिस लाइव, सो गाइड मी, हाउ डू आई अप्रोच माय वर्क। सो सीखने की तो कोई भी उम्र नहीं होती, आप सीखने को किसी से भी सीख सकते हैं। सीखने के लिए एक माइंडसेट होना चाहिए। शिनचैन तो से ये सीख रहे हैं हम, शिनचैन, ये सोशल मीडिया क्वीन। ये शिनचैन से, पल्लवी से, मैं पल्लवी को क्वीन बोलता हूँ। So that's how I think it is the best thing to happen to us. My name has changed. I told you my name has changed. It happens, you know, it happens. मैंने एक Shinchan सीरीज Sharma की थी। has a nice ring to it. I tell you, Dishant, I tell you, want to tell you हाँ one जी thing. सर। मैंने जी सर। 2008 में, in 2008, I did a series for Hungama TV called Kochika में, and the famous character was Ryotsu. I was amazed to know, वो उस वक्त जो बच्चे थे जो उसको देखते थे, आज वो 20-25 साल के हो गए। You know, when they get to know about it, it is such a huge, great feeling of affection. उसके एक एक एपिसोड को YouTube पे किसी ने पायरेसी करके डाला हुआ है और उसके ऊपर 5-5 लाख 10-10 लाख व्यूज हैं उसके।
बादल जी उन चैनल्स को बंद करवाने पे उतारू हैं बात। कहाँ कहाँ इलीगल काम हुआ है। आई रिमेम्बर सर, बाबला सर के बारे में मैं एक चीज कहना चाहती हूँ। आई रिमेम्बर जब मैंने सर की पहली बार आवाज सुनी थी, आई गेस सर शायद ऑडियो भेज रहे थे आपकी अदालत के लिए, तो ही डिड दैट वॉइस एंड अपेरेंटली मैं तब स्टूडियो में थी, एकदम से मैंने सुना एंड आई वॉज वेरी न्यू एट दैट टाइम, तो मुझे नहीं पता था ज्यादा। एंड सर बहुत सिंपल रहते हैं, मतलब जब वो बात, मतलब आप उनसे पूछो कुछ, वो आपको गाइड करेंगे ये सब, वरना वो अपना एकदम कट टू कट काम है ये सब। तो आई वाज लाइक, अरे आप वो वॉइस करते हो? कहते नहीं मैं नहीं करता, आपकी अदालत में नहीं, वो मेरी वॉइस नहीं है। और जैसे ही गए, फिर जो साउंड इंजीनियर सर थे, कह रहे तुम क्या, इन्होंने 25 साल, इतने साल हो गए वो वॉइस करे, और जब भी आपकी अदालत आता है तो वेरी प्राउडली आई एम लाइक, पता है ये सर, इन सर के साथ हमने रिकॉर्डिंग करी है, ये सर वो voice करते हैं, हमने साथ में कैरेक्टर्स करे हैं। No, I am blessed. Like Dishant, you said कि सीखने की जो इम्प्रेशनेबल एज थी, सीखने का जो एक तरीका दिमाग में, जो एक माइंडसेट बनाना था, उस उम्र में हमें गुरुजी बहुत अच्छे मिले जहां जहां भी गए। तो पद्मश्री शीला भाटिया जी, एक बात, उनकी 2 कहे हुए गुरु मंत्र मुझे आज तक याद आते हैं और वो आज तक मेरी मदद करते हैं। एक बात उन्होंने कही थी कि जब भी आप बोलो तो आप अपने आप को देखो, आप सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप को देखिए, आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं। वो एक जो स्टेट ऑफ अवेयरनेस है, इट ऑलवेज हेल्प्स यू टू इंप्रूव अपॉन योरसेल्फ। एंड सेकंड थिंग शी सेड, ऑलवेज बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। दुनिया की तरफ ईमानदार नहीं, अपने लिए। बिकॉज इफ यू आर ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, आप गलत काम करोगे ही नहीं, आप करोगे ही नहीं गलत। मैं ये ऑडियंस को बोलना चाहूंगा, these are some true Easter eggs, these are golden words from बाबला सर, इनको कहीं पे नोट कर लीजिए। मैं एक्चुअली आप बात कर रहे थे, मैं लिख रहा था चुपचाप। एंड एक्चुअली दिशांत, हम एक कॉपी लेके बैठते थे और हम नोट करते थे उस वक्त ये बात। अच्छा बाबला जी ने मुझे भी एक गुरु मंत्र, आई एम सॉरी बाबला जी, आई एम लाइक बटिंग इन, बट आपने मुझे बोला, जो कि मुझे आज तक याद है, इन्होंने मुझे 2 गुरु मंत्र दिए। इन्होंने मुझे बोला कि you should never keep all your eggs in one basket. Diversify, do everything. So I'm doing dubbing also, I'm doing animation, I'm doing films, I'm doing corporates, I'm doing IVRs, I'm doing drama. I enjoy drama the most. But he told me कि सब करो, do everything. And survival का कोई सवाल ही नहीं होता है when you're doing everything. Dubbing बंद हो जाता है, then you're doing corporates वगैरह, you're doing IVRs, you're always in the business. So और एक और बात इन्होंने मुझे बताई थी कि you should, drama point of view, say you should always approach a scene thinking about the backstory. Who are you? Why are you here? What are you doing? Who are you interacting with? All those questions you should ask yourself and then approach the scene. So I do it. Aaj bhi main aise hi Wonderful. करती हूँ. So thank you. Wonderful. Yeah, these are the 3 golden words. और ये these are the 3 golden words. Number 1, what you are as a character, where you are. आप कहाँ पे हैं उस वजह से, and what for you are there, what is the reason for you to be there. If you get 3 logical answers for this, I think you'll be able to approach your work in a much better way, and you will be improving upon yourself on a regular basis. Constant improvement. Wonderful. And this applies to every walk of life, every industry, not just a voice industry. So we are absolutely honored to receive such wonderful inputs from you, sir. Thank you so much. And great. I mean, we've got such a wide spectrum of responses regarding social media in the digital world. And ये बाबला सर की और बाबला सर जैसे legends की humility है, जो इतना कुछ देखने के बाद, इतना कुछ करने के बाद भी they're willing to accept change. And they're willing to learn and embrace it. So it's a big learning for us, the younger lot and the new generation, that we must always keep our head down and keep learning. जी सर, एक बात कहना चाहूंगा मैं, मेरा स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है। गीता में एक बात लिखी हुई है, वो ये कि there is one thing that is permanent in this world, and that is change. Absolutely. So you should be willing to accept change. You should be willing to change yourself as well. जी. तो अगर आप बदलाव अपने आप में लगातार करते रहेंगे तो आप बहता हुआ पानी होंगे, और बहता हुआ पानी आगे पहुंच जाता है, ठहरा हुआ पानी तो खराब हो जाता है। Wonderful. I think that deserves a round of applause. Sir ने जिस तरीके से उसे explain किया है, that is absolutely wonderful.
Sir, if Great. I can just do one line, because I still remember, sir वैसे सही कह रहे हैं, the one thing that's हाँ जी. constant is change. तो सर ने मुझे एक दिन मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार उन्होंने पता नहीं सर बहुत एकदम एंथू थे किसी बात को लेकर, बहुत एक डिस्कशन चल रहा था वहां पे, अचानक से मैं आ गई थी एंड आई वाज लाइक अ लिटिल सैड में स्टार्टिंग में, मुझे पता नहीं काम नहीं हो रहा था या पता नहीं क्या था, तो ही वाज लाइक विराट कोहली बनो, विराट कोहली, नो फोकस, उसका उसका कितना टर्नओवर एंड एवरीथिंग, यू नो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो उन्होंने मुझे एकदम दिखाया, यू नो वो मत देखो कि पीछे अभी लेटेस्ट कौन चल रहा है, विराट वो कितना उसका ये वो करके, यू नो हाउ ही इज वर्किंग, उसको फोकस लूज नहीं होता, ये सब। आई वाज लाइक मैं उस दिन मैं बैठी रिकॉर्डिंग में, मैं विराट कोहली, मैं तो उस दिन नहीं, why? Because you see, I appreciate people like Virat Kohli, Mahendra Singh Dhoni. कितने स्ट्रेस में, कितने स्ट्रेस में वो लोग काम करते हैं, हम जरा सा स्ट्रेस नहीं बर्दाश्त कर पाते। टारगेट देखिए ना, एक T20 मैच खेल रहे हैं और टारगेट क्या है, 6 बॉल के अंदर मैच जिताना है और 24 रन बनाने हैं और टेम्पर भी लूज नहीं करना है, प्रेशर में भी नहीं आना है, एंड ही डज इट, एंड ही डज इट, और कोई एक्साइटमेंट नहीं है, ऐसे निकल के जाता है। He is a true leader. There is so much to learn from people like Virat Kohli and Mahendra Singh Dhoni. एक temperament सीखने को मिलता है। Absolutely. And this is, I think, you've given great examples for the entire country. They'll obviously always be able to relate with these two figures. So wonderful, sir. Wonderful, Akansha. Thank you, Pallavi. मैं अब अगले सवाल पे बढ़ता हूँ, बिकॉज इंडिया वॉइस फेस्ट टीम ने हमको 8 सवाल दिए थे, अभी हम दूसरे पे पहुंचे हैं, तो चलिए मैं फटाफट अगले क्वेश्चन पे पहुंचता हूँ, बिकॉज आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, एंड वंस अगेन आई विल स्टार्ट विद अ सीनियर मोस्ट पैनलिस्ट. द क्वेश्चन इज, सर, what does it take or what elements are required to be a successful voice artist? One word answer: be a good learner. Be a good learner. आप सीखते रहिए लगातार, आप जब तक, और अपनी क्राफ्ट के लिए अगर आप में पैशन नहीं है तो उस काम को मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। आपको आप में अगर पैशन है और सीखने की आप में इच्छा है, इफ यू आर, फिर आप स्लो लर्नर भी होंगे, कोई बात नहीं, चलेगा लाइफ में, आप धीरे चलेंगे, कल को तेज भी चल पड़ेंगे, लेकिन सीखने की, लगातार सीखने की इच्छा होनी चाहिए, और वो एक पैशन होना चाहिए आपके अंदर। अपने बच्चे, एक बच्चा जैसे सीख के खुश होता है, और बच्चा एक फ्रॉम द एज ऑफ 0 100 बार गिरता है, फिर खड़ा होता है, 100 बार गिरता है, फिर खड़ा होता है। आपको एक बच्चे से सीखना चाहिए, उसको कोई शर्म नहीं है। Beautiful. आपको सीखने की इच्छा होनी चाहिए, आपको नई आप अपनी क्राफ्ट के अंदर लगातार कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। आप सीखेंगे नहीं तो आप आगे परफॉर्म क्या करेंगे, ठहर जाएंगे आप चाहे आज कितना ही अच्छे हैं अपनी क्राफ्ट में, 2 साल बाद वो स्टेल हो जाएगा। तो आपको कुछ ना कुछ लगातार नया करते रहना चाहिए, और आपको मजा आना चाहिए, लैंग्वेज में मजा आना चाहिए आपको, क्योंकि हम जो कुछ भी कह रहे हैं उसके लिए एक लैंग्वेज, भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको भाषा में मजा आना चाहिए, आपको रोज 1-2 वर्ड सीखने चाहिए, भाषा में मजा आना चाहिए, और डोंट लिमिट योरसेल्फ, keep having fun. I think that's a very short, simple, effective answer. Yeah. Wonderful. Pallavi, coming to you, what is your take on this? What does it take to be a successful voice artist? Dishant, I think I agree with Bablaji what he said. Always keep learning. और दूसरा, आई थिंक फेलियर को एक्सेप्ट करना इज समथिंग दैट वी ऑल शुड लर्न। बस क्योंकि रिजेक्शंस बहुत हर फील्ड में होते हैं, पर हमारी फील्ड में भी हैं रिजेक्शंस, तो हार्ट ब्रेक से बचने के लिए आई थिंक यू शुड नो द आर्ट ऑफ एक्सेप्टिंग फेलियर्स। और मेरा एक उसूल है, आई लुक एट द स्क्रिप्ट एंड आई एम ऑल हैप्पी एंड गॉसिपी एंड टॉकिंग एंड एवरीथिंग, बट when I step in the microphone wala area, when I step in the studio, I have a switch off button. I switch off completely. And if I'm doing a Geeta, I will only and only think about Geeta. Why? What is Geeta? Why is she here? What is she doing? Like how Bablaji taught me. And I'm only performing. I am Geeta then. So I think this focus is important. और नकल को थोड़ा अकल से करें, माने एपिंग इज नॉट, इट्स गुड, लाइक आजकल बहुत सारा बहुत मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, दे फ्लरिशिंग एंड एवरीथिंग, बट थोड़ा सा यू नो यू शुड ब्रिंग योर ओन originality also to the table, and yeah, I think that's it. Wonderful. It's a very, very practical take on today's scenario. So people, audience, please make a note of this as well. Akansha, coming to you, आप बताइए, what does it take to be a successful voice artist?
सा थोड़ा सा ही लिखा है, ठीक है। नहीं, genuinely, my short form for this is KLLBRG, ठीक है। तो इनमें से 2-3 पॉइंट्स तो सर और मैम ने बोल दिए। एक तो पहली बात, मेरा बोलना तो मतलब खुद मेरी तो बहुत ही इनिशियल जर्नी है, मैं क्या बताऊं, बट अपनी तरफ से इज K is keep it real, because like if you're doing a character of a बहन, just think of how you will speak as a बहन। ज्यादा उसको बहन को रोमांटिसाइज नहीं करना है, मतलब पीपल थिंक कि कुछ ज्यादा प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो कीप इट रियल। 1L इज लिसन, जो आपको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो डायरेक्शन दे रहे हैं, उनकी सुना। फिर दूसरा L इज योर लर्निंग, जो सर ने बोला ऑब्वियसली। The B is be in that moment, जो मैम ने बोला, obviously you be that character and everything. R is also वही मैम ने जो बोला, वो रिजेक्शन अगर होता है तो you should not feel bad. G is कि take nothing for granted. आप अगर अच्छे चल रहे हो ठीक है, पर अगर आपने अच्छा नहीं किया तो हो, या फिर मे बी फॉर एनी फलाना रीजन, प्रोजेक्ट इज मूविंग और एनीथिंग, नथिंग इज फॉर ग्रांटेड। सो आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, सो वेट फॉर दैट। सो ये था मेरा कल बरग। Wow. Extremely innovative tips. Very very innovative tips. ये मैं आपको ना बाद में कॉल करके मैं आपसे ये टिप्स लूंगा, मैं अभी लिख नहीं पाया। आप फोटो लेके भेज दीजिए अपनी डायरी। बताएंगे। अच्छा चलिए, your turn now. My turn. चलिए, I'll इतने we've received such wonderful input, so I'll give my 2 cents as a producer. कि थोड़ा सा एक वैरायटी आए। मेरे हिसाब से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर्टिस्ट टू बी सेल्फ अवेयर। हम बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ काम करने का हमें मौका मिलता है, बहुत अलग अलग तरीके का कंटेंट प्रोड्यूस करने का मौका मिलता है हमको। सो बी वेरी सेल्फ अवेयर। जरूरी नहीं है कि आपने मॉर्गन फ्रीमन जैसी ही आवाज पाई हो या आपने अमीन सियानी जी ही बनना है। टुडे देयर इज स्पेस फॉर एवरीवन। क्रिएटिविटी इज इवॉल्विंग एट द स्पीड ऑफ लाइट। there are new trends coming in on a daily basis. अब eras नहीं होते, अब trends होते हैं. So there's space for everyone. There's space for all sorts of creative styles. There's space for all sorts of skill sets. So अपनी strengths को जानिए। किसी और की strength पाने के लिए अपनी strength को पीछे मत करिए। आपकी एक strength है, वो आपकी एक uniqueness है, और उसको embrace कीजिए। अब क्या होता था बाबला सर के, when बाबला सर started his career, when my father started his career, जो भी हमारे आज के legends हैं, उनका एक यूनिक स्टाइल होता था, उनका एक कॉलिंग कार्ड होता था। आप सुन के बता सकते हैं कि ये बाबला सर हैं या ये शमी नारंग जी है, या आजकल के जमाने में आई गेस पल्लवी और मेरी जो जनरेशन है, जो कांचा की जनरेशन है, वी हैव टू बी मोर वर्सेटाइल। इंस्टेड ऑफ हैविंग वन कॉलिंग कार्ड, वी प्रोबेबली नीड टू हैव 5 to 6 स्टाइल्स अंडर आवर बेल्ट। कि वी हैव बिकम हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। जो रिक्वायरमेंट है आप उसको सर्व कीजिए, बट बी ट्रू टू योरसेल्फ। अगर एक 7th स्टाइल है, मेरे 5th 6th स्टाइल के अंदर नहीं वो आता, तो जान पूछ के मत घुसिए उसमें, शायद आप अपनी ही ब्रांड वैल्यू थोड़ी कम कर दें। सो नो, बी वेरी सेल्फ अवेयर, नो योर स्ट्रेंथ्स एंड नो योर वीकनेसेस आल्सो इक्वली वेल, इसलिए कि आप उस वीकनेस पे या तो काम कर पाए या फिर उसे अवॉइड कर पाए। Play to your strengths, that will always keep you in good stead. So that is my 2 cents as a producer rather than an artist. Very well said, Dishant. Thank you. Very true. Thank you. No, because And this also, thing, I would say this thing will help you as an artist also. Agar aapko, if you know your weaknesses as an actor, as an artist, if you are aware of yourself, it is very important for you to be aware of yourself as a personality. It is very important to be, like I said, it is an extension of the fact that you be honest to yourself. If you are honest to yourself, you'll be aware of yourself. If you are aware of yourself, you'll be aware of your surroundings. You will be aware of what is happening around you. Then, अगर आपको 5 या 6 तरीके से काम करना आता है, 7वां तरीका किसी और का है, और द टाइम बीइंग उसकी अगर आप नकल भी मारें तो अपने तरीके से। जी बिल्कुल सर, absolutely great. I mean, उसको you should have your own take on his work. तो होगा ये कि आप उसके तरीके को पूरी तरह से कॉपी नहीं कर रहे हैं। That is your take on his point of view. आप उनके तरीके के काम को अपने तरीके से कर रहे हैं। जी, जो
आप उसको फिर से उसको यूनिक कर रहे हैं बिकॉज वो आपका स्टाइल है एट द एंड ऑफ द डे. वंडरफुल. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन थोड़ा मसालेदार है. आई थिंक ये इंडिया वॉइस फेस्ट की टीम ने ना थोड़ा सा एक मजेदार क्वेश्चन फेंका है बीच में. एंड द क्वेश्चन इज दिल्ली वर्सेस मुंबई. How do you view the difference in working style and opportunities between Delhi Okay. and Mumbai? So let's start off with you, Akanksha, because you just said that आपकी एक जो social media presence है, that's global. That's not bound by any geographical boundaries. So why don't you start off with this question? See, actually, after being available on social media, I've got a lot of inquiries from Mumbai. I've got a lot of inquiries from Jaipur. So I got to do like jo voiceovers, I guess, यहाँ पर because everyone thought, oh, animation and everything only. They did not maybe that time see. So maybe the other industries also, you know, they saw कि हो रहा है, and then I recorded. I have actually done voiceovers for so many hotels and everything, which is very fascinating to me. Huh? I'm like talking about उनके parking space कितना है, उनमें Wi-Fi आता है, ये सब. अच्छा ऐसा होता है और ये सब. So you know, learning all those new words, pronunciations and everything. Definitely, ये मतलब I've just lost the track of the question. Question was Delhi versus Mumbai. Delhi, Mumbai. What Yeah, is the now I difference lost in- the and- track. Yes, but that's what I'm saying. I went along. Yeah, See, obviously, I am very jealous from Mumbai industry. मैं मुंह पे बोलती हूँ सर, मेरे तो चेहरे पे छुपता भी नहीं है, कुछ ज्यादा एक्सप्रेसिव फेस है. ये बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, बट आई एम नॉट डिमीनिंग दिल्ली इंडस्ट्री. दिल्ली इंडस्ट्री मेड मी. ठीक है, आज इफ यू नो मी, दैट इज बिकॉज ऑफ Delhi industry, and because I'm still in the learning phase, I'm sure there's a lot to learn here also. Definitely एक बड़े projects आते हैं जो थोड़े दिल्ली में भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, but obviously वो theater releases and everything, they are like opportunities that थोड़ा ऐसा as in Delhi artist I feel कि you know कर सकते थे यार, हमें भी talent है. But obviously the voices that are chosen are very nice. So I always see the Hindi dub version and I always speculate अच्छा कौन सी कैसी voice है, and मैं तो I learn from it also कि वहाँ कैसे होता है. So all in all, obviously हर एक इंडस्ट्री का अपना अपना होता है, and artist की कोई इंडस्ट्री नहीं होती. आर्टिस्ट को कहीं भी बुला लो काम के लिए, आर्टिस्ट पहुंच जाएगा. बिल्कुल, global citizens. Yes. Wonderful, Akanksha. Pablo sir, what is your take? You see, I think, sorry, with due respect to everybody, ये जो verses जो लफ्ज में Delhi versus Mumbai, मैं इस वर्ड को डिलीट करना चाहता हूँ. क्योंकि देखिए क्या है, आप अगर देखेंगे तो मुंबई में भी ज्यादातर टैलेंट यही नॉर्थ से पहुंचा है. जी. आप इस बात को जरा ध्यान से सोचे. जी. वो इसलिए गया क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज की कमी थी. अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बढ़ने लगी हैं, और जब से इंटरनेट आया है तब से काम करना बहुत आसान हो गया है. जी. आप दिल्ली में रह के वहां का काम कर सकते हैं, आप मुंबई में रह के दिल्ली का काम कर सकते हैं. हाँ, काम करने का हर शहर का अपना एक कल्चर होता है. उस बात से मैं अग्री करता हूँ. वो आई डू अग्री ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट कि हर शहर का अपना एक सोचने का, काम करने का एक तरीका होता है, कल्चर होता है, एक वर्क कल्चर होता है. जी बिल्कुल. हाँ, वो एक कल्चर होता है, वो होना भी चाहिए. वो बिकॉज दैट इज योर आइडेंटिटी एज ए सिटी, वो होना भी चाहिए. और जब आप मान लीजिए, मैं आई लिव इन मुंबई ऑल्सो, आई हैव अ हाउस इन मुंबई, माई हाफ ऑफ माई फैमिली इज इन मुंबई, माई एल्डर सन इज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क इन मुंबई एज अ वॉइस एक्टर ओनली, उपलक्ष. सो मुझे उनके काम करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ का काम करने का अपना एक तरीका है. और क्योंकि अलग अलग आइडेंटिटी है तो इसलिए उसको वर्सेस नहीं करना चाहिए. पहली बात बिल्कुल सर, couldn't agree more. अपनी अपनी पहचान है, सबकी अपनी अपनी, हर शहर की अपनी एक पहचान होती है, तो उसको वर्सेस करके नहीं दे. हाँ, you have a point of view, you can be different from the other person's point of view, that is acceptable. तो इसलिए वो वर्सेस करके नहीं देखना चाहिए उसको. और आर्टिस्ट जैसे आकांक्षा ने कहा, हम तो ग्लोबल सिटीजन है आज की डेट में. मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो यूके में भी हैं, कनाडा में भी हैं,
वो ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, ये पूरे इंडिया में है, और सो इज विद पल्लवी, सो इज विद आकांक्षा, और हम ये सब यही चाहते हैं कि हमारी रिकग्निशन बड़े प्लेटफॉर्म पे हो, ज्यादा जी, वाइडर प्लेटफॉर्म बिल्कुल। पे हो। इसीलिए तो इंडिया वॉइस फेस्ट के इस फेस्टिवल में हम हिस्सा ले रहे हैं। ये भी तो एक वजह है ना कि हाँ एक्सेप्टेबिलिटी, बिल्कुल। हमारी पहचान होनी Absolutely. चाहिए। हाँ, जी Wonderful, sir. I think you have given a very, very beautiful, philosophical, yet a very practical answer. हम्म, Now, coming to you, Pallavi. Pallavi, you have resided in both the cities. You have, gotten a proper take of the living culture, the work culture, etc. Well, what is your take? You would have a very, very accurate analysis. I think Prashant, this is a very controversial question. Delhi, Mumbai. कंट्रोवर्शियल नहीं, मसालेदार बुलाते हैं इसको, है ना? हाँ, ये मसालेदार मुंबई वालों ने question. फेंका है हमारे ऊपर सवाल, तो चलो हम भी इसको मसालेदार बनाते हैं हाँ, थोड़ा। मैं और पूछूंगी इस आज सवाल का पुरानी- इस सवाल का जवाब सिर्फ दिल्ली वालों से ही क्यों, मुंबई वालों को भी तो देना चाहिए। कोई नहीं सर, किरण अभी की पूछना हम पड़ेगा भी ये। थोड़ा पूरा कि- करेंगे हाँ, बोल के, मीरा, डोंट वरी। किरण की किसका क्वेश्चन है ये? Who asked us? So but I think now we are all sitting at home, Dishant, recording on Zoom and clean feed and whatnot. So I think now the physical boundaries are sort of blurring. So I think Absolutely. I think now Delhi, Mumbai, ऐसा कुछ रह नहीं गया. Versus I think talent is talent. I think if Dishant is doing Apollo Tires Hindi, if Dishant is doing Hindi, I think he's nailing it, and I think people will say कि भाई Dishant is a wonderful, talented actor, and not Dishant is from Delhi and he's a talented actor. So I think Right. शहर से आइडेंटिटी नहीं है अपनी. अगर कोई भी काम दिल से होगा तो आई थिंक काम बोलेगा. So Recently, Pallavi, sorry, I'm saying नहीं, something. please. अभी हमने we've done 3 projects for Audible, and they were all the producers from Mumbai, and we were sitting here in Delhi doing our bit. और वो तीनों के तीनों बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ऑडिबल के लिए. वो मुंबई के प्रोड्यूसर्स थे, उनके लिए हमने यहाँ से दिल्ली से बैठ के काम किया उन लोगों के लिए. आई थिंक ये सवाल थोड़ा सा, मतलब इस सवाल को ड्रॉप कर देना चाहिए. नहीं, अब वैलिड होता अगर कुछ टाइम पहले हम बात कर रहे होते. अब इस वक्त आई थिंक नाउ इट्स बिकम, आई थिंक नाउ द बाउंड्रीज हैव सॉर्ट ऑफ वी हैव ऑल कम टुगेदर एंड वर्किंग फ्रॉम होम, सो दैट आई थिंक इज now शहर का आइडेंटिटी is थोड़ा सा. Absolutely. Let's And say ironically, Jai Maharashtra and Jai Delhi. Both. Let's say Jai Hind. Let's say Jai Hind. Ironically, I feel the pandemic has accelerated the blurring of boundaries, because so many I artists have agree. become homebound. And सर जब pandemic हुआ था, हमारे 1500 आर्टिस्ट में से 20 के पास home setups थे. And 3 months into the pandemic, at least 60 to 70% of our artists had home setups, including myself. So अब geographical boundaries तो कुछ रह ही नहीं गई हैं. और देखिए हर शहर का, like sir said कि versus is the wrong word, and सबका अपना एक unique pros and cons होते हैं. मुंबई में बिल्कुल इंडस्ट्री है, वो एक गढ़ है, वहाँ बहुत डिमांड है, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, वहाँ ओवर सप्लाई भी बहुत ज्यादा है. there are certain niches in Delhi जो आपको मुंबई में नहीं मिलेगी. जैसे दिल्ली में आपको मिनिस्ट्रीज का बहुत काम मिलता है, आपको यूनाइटेड नेशंस का बहुत काम मिलता है. वी गेट टू वर्क विद ऑल द एम्बेसीज, ऑल द हाई कमीशंस, ऑल फॉरेन डेप्यूटी कमीशंस एटसेट्रा. तो ये है ना, कंपैरिजंस करने को हमेशा जिसका आर्ग्यूमेंट ज्यादा स्ट्रांग हो वो जीत जाता है. बट लाइक यू सेड, टैलेंट इज टैलेंट. Talent is not defined by any geographical boundaries. I can be sitting in Timbuktu, and as long as I have a good microphone and an internet connection, I can be serving any part of the world. And that is, I think, really good for the entire industry, for the entire world also, that now your geographical location has become irrelevant. I would want to support you on this, Dishant. Why? Because I have been recently shooting for a couple of web shows, and I've been traveling a lot. And I've been traveling and shooting in various locations all over India. And मैं सबसे पहला सवाल ये पूछता हूँ अपने प्रोड्यूसर से, लाइन प्रोड्यूसर से या ईपी से, भाई वहां पे इंटरनेट है ना? बस तू मुझे ये बता दे. मेरा फील्ड स्टूडियो मेरे साथ में चलता है, एंड आई एम वर्किंग. आई डोंट मिस आउट ऑन माय ऑडियो असाइनमेंट्स इवन व्हेन आई एम शूटिंग. जी. तो इसलिए ये जो वर्सेस सवाल में जो वर्सेस वर्ड है उसको हटा दें. चलिए इसको हटा देते हैं. दिल्ली मुंबई दोनों बहुत ही दे ग्रेट सिटीज. दे हैव अ ग्रेट कल्चर, एंड देयर इज ग्रेट टैलेंट कमिंग फ्रॉम ऑल साइड्स. सो गुड फॉर इंडिया.
Yeah, good for everybody. है ना? चलिए, I think we are a little short on time, but I'm going to try and squeeze Yes. in one last question. चलिए, एक important question हमारी audience के लिए. सर, आपसे start करते हैं. What is your advice for aspiring voice artist? If you have to sum it up in one sentence. Although it is very difficult to sum it up in one sentence, because इसके बारे में तो मैं पूरे 2 घंटे बोल सकता हूँ. बिल्कुल 2 दिन सर, भी मैंने बोल थोड़ी curve दो ball दिन फेंकी है because दो we have दो time दिन भी बोल restrictions. सकता हूँ, लेकिन टू बी इन दिस फील्ड, पहली बात तो ये है, बिकॉज यहां पे आप बेसिक जॉब रिक्वायरमेंट जो है वो ये है, यू हैव टू सेल इमोशंस इंटेलिजेंटली. चाहे आप कोई भी जॉनर में काम कर रहे हो, चाहे आप कॉर्पोरेट कर रहे हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको इंटेलिजेंटली इमोशंस को कम्युनिकेट करना आना है. अगर आप अपने आप से ये सवाल पूछते हैं, यू आर गुड एट दैट और यू कैन लर्न दैट स्किल और इंप्रूव अपॉन योरसेल्फ, यू आर मोस्ट वेलकम. नहीं तो सिर्फ ये देख के कि आज पल्लवी जी इतना अच्छा कर रही हैं, इनकी वो YouTube पे किसी ने बोल दिया एक वॉइस ओवर करने के इतने पैसे लेती हैं या वो इतने पैसे लेते हैं, इफ दैट इज एक्साइटिंग यू, प्लीज डोंट डू इट. ये काम पैशन का काम है. दैट्स व्हाट आई वांट टू से. I agree. बिल्कुल. And I feel Bhavlaji covered it all. I think aspiring voice actors को India Voice Fest को follow करते रहना चाहिए, because I think it's doing wonderful. And yeah, keep learning. Actually, practice, keep learning. Know your art and know where you stand. Keep recording yourself. Bar usse suniye and practice. Yeah. Wonderful. Akansha, coming to you. If you want to do exciting work every day, then you want to be a voice artist, it's great, you can do it, but have some patience and work hard. Thank you. Very good. Yes, Wow. some patience. Yes. That was precise. I really appreciate that. But that was cute as well. No, patience का जहां तक सवाल है, I remember success. I started tasting success after being for almost 12 years in the industry. खैर उस वक्त अपॉर्चुनिटीज कम होती थी, आज बहुत हैं अपॉर्चुनिटीज. इफ यू आर गुड, you'll get opportunities very soon, but patience is the key word and perseverance. आप लगे रहें. Golden words. Amazing. Yeah, patience is the key word. I guess we want to hold on to that thought and really appreciate the entire conversation, because there are so many tidbits to take away. And as you said, that we should keep noting them down. I'm definitely going to make sure that it is passed on also if anybody wants it later. Thanks a ton again to everybody, and it has been a beautiful session for now. Thank you so very much, India Voice Fest. Thank you so very much, India Voice Fest, for giving us this wonderful platform. Thank you, Darpan Mehta. You've taken a great initiative. You see, एक entrepreneur भी होना चाहिए एक artist के अंदर. ये भी जरूरी है. And thank you, Dishant. God bless you. Thank you, sir. Thank you, Dishant. Thank you so much. Thank you so much.